اساتذہ کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ اوہو، انہی لوگوں سے بات کرے جی، میرے تو ہاتھ پاؤں سن ہوئے پڑے۔ شبیر صاحب مجھے لگتا ہے کہ صرف ہاتھ پاؤں ہی نہیں، آپ کا دماغ بھی سن ہو گیا ہوا۔ بھائی وہ بات کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو منہ سے کرنی ہے، انہوں نے کوئی والی بال نہیں کھیلنا آپ کے ساتھ۔ آپ تو ایسے بغلوں میں ہاتھ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ابھی ابھی آپ نے ٹیچر سے سوٹیاں کھائی ہیں۔ ویسے بھی شبیر صاحب بغلوں سے ہاتھ اور کچھوا خول سے گردن ضرورت کے تحت ہی باہر نکالتے ہیں۔ بھائی جان، کچھوے کی کمر پہ اینٹ مارے تو وہ گردن باہر نکال لیتا ہے، کیوں نہ شبیر صاحب کے کمر میں بھی اینٹ مار کے دیکھیں؟ خبردار کسی نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کری۔ اوہو شبیر صاحب، میرا خیال ہے جس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں اس کی طرف آنا چاہیے۔ مجید صاحب، آپ زیادہ سردی کی وجہ سے زیادہ سلو نہیں ہوئے؟ بھائی صاحب، حضور میرا خیال ہے بات کر نہ لی جائے۔ بات منہ سے نکل ہی نہیں رہی حضور، ہیٹر تھوڑا تیز کروا دیں۔ یہاں ذرا ہیٹر تیز کروا دیں، پھر اس کے اوپر مظفر صاحب 2-3 منٹ اڑتے رہیں گے، پھر ان کا جسم گرم ہوگا تو پھر یہ بیٹھ کے بات کریں۔ مجید صاحب، اب آپ بھی پٹڑی سے اتر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ چھٹیاں انجوائے کرنے کے چکر میں ہیں، اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ آپ ہی نظر لگائیں گے ہماری خوشیوں کو۔ اساتذہ کو آپ چھٹی پر دیکھ ہی نہیں سکتے۔ آپ کیوں اس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر کسی کی نظر پڑ گئی تو چھٹیاں منسوخ ہو جائیں گی۔ اشتیاق صاحب، اگر قوم کے معمار ہی چھٹیوں پر ہوں گے تو قوم بنے گی کیسے؟ خدا کے واسطے رضائیوں میں بیٹھ کر ٹک ٹاک انجوائے نہ کریں، نکلیں باہر، پہنچیں سکول میں، بے شک ہیٹر لگا لیں مگر بچوں کو پڑھائیں تو صحیح۔ واہ، کیا انداز ہے مجید صاحب آپ کا، لگتا ہے جیسے گاؤں میں کسائی اعلان کر رہا ہے کہ گاؤں والوں بکرا حلال ہو گیا ہے، 2800 روپے کلو گوشت ہے، پہلے آئیں گے تو گوشت اچھا مل جائے گا، برائے مہربانی جلدی جلدی کر لیں۔ ویسے میں معافی چاہتا ہوں شمس صاحب، اتنی اہم بات ہو رہی ہے اور آپ اپنی ایک بوٹی کی خاطر بکرا حلال کر رہے ہیں۔ ویسے میں معافی چاہتا ہوں مجید صاحب، آپ ہیٹر چلانے کی بات کر رہے ہیں، چائے بنانے کے لیے ہمارے سکول میں چولہا جل جائے تو سارا سٹاف شکرانے کے نوافل ادا کرتا ہے۔ بجلی کا ہیٹر چلانے پہ تو ویسے ہی پابندی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ بجلی کا ہیٹر جلا کر سالن گرم کیا تھا تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے نوٹس بھجوا دیا تھا۔ ویسے میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو نوٹس ٹھیک ملا ہے کیونکہ آپ کا سالن گرم کرنے کے لیے ہیٹر نہیں پورا گرڈ سٹیشن چلانا پڑتا ہے۔ اشتیاق صاحب کا تو سالن گرم ہو رہا ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے ماں جی دابڑے والا صابن بنا رہی ہیں۔ ویسے آپ لوگوں کے انہی بہانوں کی وجہ سے اساتذہ بدنام ہوتے جا رہے ہیں اور تعلیم کا معیار گرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بہانے نہیں، زمینی حقائق ہیں۔ بچے جب صبح 7 بجے گھر سے نکلتے ہیں اسکول کے لیے تو ہاتھ ان کے جیب میں ہوتے ہیں اور ناک بہہ رہا ہوتا ہے، اور جو ہاتھ ناک صاف کرنے کے لیے نہیں نکلتے وہ کتاب کھولنے کے لیے کیسے نکلیں گے ٹھاکر؟ جناب، یہ صرف پنجاب کے سکولوں کا مسئلہ ہے، سندھ اور کے پی کے نے بھی ٹائمنگ تبدیل کر کے کام چلا لیا ہے، تو پھر پنجاب میں صرف چھٹیاں کیوں؟ دیکھیں علی ممتاز صاحب، یہ تو اپنے اپنے ویژن کی بات ہے۔ ہمارے جو پنجاب کے وزیر تعلیم ہیں وہ بہت دور اندیش ہیں، ان کو کئی سال پہلے ہی یہ پتا چل گیا تھا کہ میں گنجا ہو رہا ہوں۔ انہوں نے اسی وقت اپنا ہیئر سٹائل ایسا بنا لیا کہ پتہ ہی نہ چلے گنجا ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے۔ یہ کیا ویژن ہوا؟ یہی دور اندیشی ہوتی ہے جناب، ان کو پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اگر اتنی سردی میں بچے باہر نکلیں گے
तो इनकी नाक बहनी बंद नहीं होगी। असल मसला तालीम का नहीं है, असल मसला पाकिस्तान में बहती हुई नाक का है। क्योंकि जब एक बच्चा अपनी नाक साफ करने के लिए कोहनी से हाथ तक का सफर तय करता है तो पढ़ा लिखा बच्चा भी अनपढ़ लगना शुरू हो जाता है। ये क्या इंतहाई फजूल दूरंदेशी बता रहे हैं आप। और जी मजीद साहब के कहने का मतलब ये है कि वजीर साहब जानते हैं कि इतनी सर्दी में ना सूरज धुंध से निकलता है और ना तालिब इल्म घरों से निकलते हैं। हाय ये अब भी ये बातें शुरू हो गई हैं। हम तो बचपन में सर्दियों में स्कूल जाते रहे हैं और उस वक्त तो इस तरह से छुट्टियां नहीं होती थी। हाँ। अली मुमताज साहब, आप अमीरों के बच्चे हैं, आप माशाल्लाह बेहतरीन इमारतों में बैठ के पड़े हुए हैं। हाय अगर आपको सर्दी कुछ नहीं कहती तो आप प्रोग्राम स्टूडियो की बजाय टाली के नीचे करके दिखाएं। ओ जनाब, छुट्टियां बढ़ाना मसले का हल नहीं है। इस तरह तो बच्चों का सिलेबस पीछे रह जाएगा। सिंध और केपीके ने भी टाइमिंग बदल ली है, शेड्यूल चेंज किया है। आप भी इस तरीके से अपने शेड्यूल तब्दील कर लेते। बिल्कुल। देखें अली साहब, पंजाब के असातिज़ा भी छुट्टियों के हक में हरगिज नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि छुट्टियां ना की जाएं, टाइमिंग बदल ली जाए। सही। हाँ, अगर पंजाब में सर्दी ज्यादा है तो असातिज़ा कराम को सर्दी का सामना करने के लिए कुछ चीजें मुहैया कर दी जाए, हीटर लगा दिए जाए, ड्राई फ्रूट दे दिया जाए, बड़ा अच्छा लगेगा। असातिज़ा कराम साथ देसी अंडा छील कर खाते हुए और चलगोजे छीलते हुए बच्चों को तालीम देंगे। ये भुट्टो ओ भाई एक मिनट, ये भुट्टो वालों ने तो स्कूल की टाइमिंग तब्दील करके स्कूल्स को खुला रखा हुआ है और जिन चलगोजों की आप बात कर रहे हैं वो 9000 किलो हैं। तो भाई फिर आप या कौम का मुस्तकबिल देख लें या फिर चलगोजों का रेट देख लें। ऐसे माफ कीजिएगा, आप असातिज़ा हैं, लेकिन मुझे यहाँ ये कहना पड़ेगा बसद एहतराम कि इंतहाई फजूल बात की आपने। हाय यानी कादा एहतराम रह गया जी जो बात कर ही देती है। तो भाई इसका कोई और हल निकाल लीजिए। देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, बच्चों को यूनिफॉर्म में रिलैक्सेशन दी जाए, यानी कि वो अपनी जैकेट्स पहन के, गर्म जैकेट्स पहन के स्कूल आ सकते हैं। और दूसरी तरफ ये कि ये कहाँ लिखा है कि हर साल जो कई दहाइयों से होता चला जा रहा है कि जी उसी तारीख को छुट्टियां शुरू होनी है और उस तारीख तक छुट्टियां जारी रहेंगी। महकमा मौसमियात से पूछा जाए कि सर्दी का जोर कब बढ़ेगा, जब सर्दी ज्यादा हो तो तब छुट्टियां दी जाएं ताकि तारीख आगे जाए और बच्चों की छुट्टियों में इजाफा भी ना करना पड़े और ना उनके सिलेबस को इस तरह से मुतासिर किया जाए। अली मुमताज साहब, आप खुद पढ़े लिखे आदमी हैं जी। भाई 25 दिसंबर कायद आजम साहब की वलादत का दिन है। अगर उन दिनों में छुट्टियां ना दी गई तो कायद आजम कितने नाराज होंगे। तो बच्चों की तालीम मुतासिर होगी, उस पर कायदे आजम नाराज नहीं होंगे। क्या फजूल बात कर रहे हैं आप। एक 25 दिसंबर की छुट्टी कर लें और उसके बाद बाकी छुट्टियां तब करें कि जब सर्दी बढ़ जाए। हाँ बिल्कुल। ये मुंडा नहीं बात आएगा भाई। भाई काट करते हैं फिर प्रोग्राम से। बिल्कुल ठीक है, रैली निकालो भाई। लो बस यही कुछ रह गया आपके पास अपने नाजायज मुतालबात मनवाने के लिए। हाँ। मैं तो हैरान हो रहा हूं कि अब आपने चलगोजों का भी मुतालबा कर दिया। यार वो तो आपस की बात है, अगर चलगोजे अफोर्ड नहीं करते तो चले मूंगफली कर लें। और अली साहब, अगर मूंगफली वाला बिल पास हो तो मूंगफली 3 दानों वाली होनी चाहिए। जी हाँ, अच्छी बुनी हुई होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए। वैसे सर माजरत के साथ आप लोगों ने स्कूल में पढ़ाने आना होता है, पिकनिक मनाने नहीं आना होता। ये तो बच्चों के रिजल्ट से ही पता चल रहा है कि ये स्कूल में पिकनिक मनाने ही जाते हैं। हाँ जी। तो यार ऐसी बात नहीं है, हमें खुद ये बड़ा एहसास है कि बच्चों की तालीम का बड़ा हर्ज हो रहा है इस सर्दी की वजह से। भाई जब इतनी छुट्टियों के बाद बच्चा स्कूल में आएगा तो उसने कहाँ सीखना है। हाँ। वो बहुत पीछे रह जाता है, हमें भी ये एहसास है। इतनी सर्दी में बच्चे ने कौन सा आइंस्टाइन बन जाना है। उल्टा नजला जुकाम ही होता है। हाय बस यही एक बहाना है आपके पास। अली साहब, ये नजला जुकाम आपके लिए मामूली चीज होगी क्योंकि आप लोग टिश्यू से नाक साफ करते हैं। पूछें हम गरीब लोगों से हाय जिनकी माँ मोटे खेत से नाक साफ करती है तो 3-3 दिन नाक पे सड़न पड़ती रहती है बच्चे को।
ओ भाई, बाकी लोग भी अपने अपने शोबों में इसी सर्दी में काम करते हैं, क्या उन्हें नजला जुकाम नहीं होता? क्या उन्हें सर्दी ने इस्तिस्ना दे रखा है? ओ भाई, दूसरे शोबों में जवान आदमी बाहर निकलता है काम काज के लिए, हम तो तैयार हैं स्कूल जाने के लिए, मगर हमारे शोबे में बच्चों को भी आना होता है और बच्चा नाजुक होता है। बच्चा बेचारा इतनी ज्यादा सर्दी नहीं बर्दाश्त कर सकता। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पंजाब में क्या सिंध, बलूचिस्तान और केपीके से अनोखी सर्दी पड़ती है। उन्होंने भी अपनी टाइमिंग्स तब्दील की हैं, सुबह 8 बजे के बजाय 9 बजे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आपको मालूम भी है कि पंजाब में एक साल में बच्चे कितनी छुट्टियां करते हैं? 182, यानी कि साल में 6 महीने तो वो स्कूल ही नहीं जाते। अगर इसी तरह से छुट्टियां करते रहेंगे तो तरक्की या पढ़ना उन्होंने क्या ख्वाबों में है? बिल्कुल। देखिए, बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि पानी का आधा गिलास खाली है जी। आप ये नहीं कह रहे कि पानी का आधा गिलास भरा हुआ है। लो। भाई 6 महीने छुट्टियां आप कह रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि बच्चे माशाल्लाह 6 महीने स्कूल जाते हैं। हाय। अच्छा जी, बच्चे 6 महीने स्कूल जाते हैं तो भाई 6 महीने छुट्टियां भी तो करते हैं। आप देखिए कि बच्चों का रिजल्ट कहां पहुंच गया है। हाँ जी। ओ यार, आपने तो अली साहब खाम खाम मुतक्का लगा लिया है। ओ भाई, जिन्होंने 8 बजे की बजाय 9 बजे टाइमिंग कर ली है, उनके बच्चे कौन सा चांद पर पहुंच गए हैं? या तो है ना आपको चांद पर से आवाज आई हो, अदा साईं हम चांद पर पहुंच गया हूं। सही बात है, उनके बच्चे भी फेल हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी फेल हो रहे हैं। आपका अल्लाह ही वारिस है।